Mathematics is the most powerful and wonderful creation of human spirit. Without mathematics, you cannot do anything. The man who knew infinity is a self-taught genius. His talent and research left an indelible mark on mathematics. Dear friends, today we have assembled through a virtual platform to observe the National Mathematics Day to commemorate 133rd birth anniversary of Srinivasa Ramanujan. At an age when students struggle with algebra, trigonometry and arithmetic problems, Ramanujan not only mastered them but also found theorems to solve many trigonometric problems. May I now request our esteemed coordinator ma'am, beloved supervisors, staff secretary, department members to offer floral tribute to the great soul. Now it's time to invite the young and vibrant minds to present our musical rendition before all of us. शून्य से उत्पन्न शून्य में विलीन शून्य तो है शक्ति का आधार शून्य से उत्पन्न शून्य में विलीन शून्य तो है शक्ति का आधार आओ सब करें इस पर विचार आओ सब करें इस पर मुझसे तो चलता है संसार का गीता अल्फा हूँ मैं बीटा हूँ ओमेगा थीटा मुझसे तो चलता है संसार का
पर विचार, आओ सब करें इस पर विचार। मेरे बिना नहीं किसकी होती है पहचान, दर्शन हो या राजनीति, अर्थशास्त्र और विज्ञान। मेरे बिना नहीं किसकी होती है पहचान, दर्शन हो या राजनीति, अर्थशास्त्र और विज्ञान। अंक गणित या बीज गणित या जमीन, अंक गणित या बीज गणित या जमीन। बिना गणित के कुछ नहीं, सुन लो मेरी मीत। आओ सब करें इस पर विचार, आओ सब करें इस पर विचार, इस पर विचार, इस पर विचार। Thank you, my dear, for your mesmerizing performance. Next, it's time to invite one of our beloved students, Tanmay Mahapatra of class 10A, to throw more light on life and contribution of Srinivasa Ramanujan. It was 133 years ago that one of India's greatest mathematical geniuses took birth on this planet. All of us are here today to commemorate this very fact. No prizes for guessing that I'm talking about Srinivasa Ramanujan. Warm greetings to everybody attending this YouTube live stream. I, Tanmay, I'm here to speak about Srinivasa Ramanujan's early life. Ramanujan was born on 22nd December 1887 into a Tamil Brahmin Iyengar family in Erode, Madras Presidency. His father was a clerk at a local sari shop and his mother was a housewife. He occasionally sang at the local temples. Initially, he did not like attending school. His family had to enroll the services of a local constable to make sure that he attended school. All this while, he stayed with his mother, with whom he had a very strong bond. He learned the intricacies of Indian culture from her, be it reading the Puranas, singing hymns, or maintaining particular food habits. This genius started showing his brilliance from a young age itself. He passed his primary schooling at just 10 years of age and moved to the town higher secondary school at the age of 11. He managed to solve the well-known book on trigonometry by S.L. Loney by the age of 13 and devised a few of his own theorems. Skipping forward a few years, at the age of 16, he obtained G.S. Carr's 5,000 mathematical theorems. This book is said to have awakened the mathematical genius in him. Following his marriage to Janaki in 1909, he developed an illness, after recovering from which he decided to pursue a career in mathematics. Initially, he applied for a post at the Revenue Department under V.R. Iyer. Iyer was thoroughly impressed by his math notebooks. His peers, however, doubted his integrity, but finally they acknowledged his brilliance. With Iyer's help, Ramanujan had his work published in the Journal of the Indian Mathematical Society. Later, his work was seen by greats such as G.H. Hardy, who invited him to the Cambridge University to show the proofs of his theorems. His mathematical work would be too great an ocean for me to sail across alone. Therefore, I bid adieu here. I hope you enjoy the rest of the presentation. Thank you. Thank you, dear, for your enlightened words. You rightly said, he made substantial contributions to the field of mathematics. Srinivasa Ramanujan is greatly acknowledged as the greatest mathematicians India has ever produced. To know more about the life history of Srinivasa Ramanujan, let us witness a drama being presented by our young and enthusiastic students of class 8. यह कहानी एक व्यक्ति की कहानी है जिनमें गणित के लिए बेपनाह प्यार और जुनून था। उसमें छिपे संदेशों और अर्थों के भाव को समझने के लिए उनमें अद्भुत काबिलियत थी। उन्होंने
गणित से अपनी घनिष्ठ मित्रता को साबित किया था, वह गणित को रागों के भांति व्यवहार किया करते थे और इस मुकाम को हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया था। तभी जाकर वह इस मुकाम को पाने में सफल हुई। टाउन हाई स्कूल का दृश्य, टाउन हाई स्कूल का कक्षा और ये गणित का पीरियड था। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। आज की गणित के विषय में हम भागफल के बारे में पढ़ेंगे। जी गुरुजी। बच्चों, अगर किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग दें तो उसका भागफल 1 होता है। जी गुरुजी। इस गणित के सिद्धांत को एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। मान लो कि मेरे पास 13 केले हैं और मुझे 13 बच्चों को बांटना है, तो प्रत्येक को कितना मिलेंगे? गुरुजी मैं बताऊं? हाँ बताओ। इसका उत्तर 1 होगा। सही जवाब। तो अगर हम 13 को 13 में भाग दें तो उसका भागफल 1 होता है। समझ में आया ना? हाँ गुरुजी। मान लो कि मेरे पास 1000 केले हैं और मुझे 1000 बच्चों को बांटना है, तो प्रत्येक छात्रों को कितना केले मिलेंगे? गुरुजी मैं बताऊं? हाँ बताओ। गुरुजी 1 केला। बिल्कुल सही, शाबाश। तो ये है कि अगर हम एक संख्या को उस संख्या से ही भाग दे तो उसका भागफल 1 होता है। इस नियम को हमेशा याद रखना। गुरुजी मेरे एक प्रश्न है। हाँ पूछो। गुरुजी क्या ये नियम 0 पर भी लागू होगा? अगर 0 को 0 में भाग देंगे तो क्या परिणाम 1 के बराबर होगा? जी, ये नियम हर जगह लागू नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 केले को 0 बच्चों में बांट जाए तो 0 केला ही बचेंगे ना। तो ये थे होनहार श्रीनिवास रामानुजन। 5 वर्षीय रामानुजन ने गंगायन स्कूल में दाखिला लिया, पर उनके पिताजी उनके लिए थोड़े से वेतन में पुस्तक नहीं ला पा रहे थे। लेकिन रामानुजन को पढ़ने के लिए पुस्तक की जरूरत नहीं थी। वे खिलौनों से नहीं, गणित से खेलते थे। वे बहुत सारे भाषाओं में भी पारंगम थे और अंकगणित के साथ साथ उन्होंने प्राइमरी परीक्षा भी पास कर ली थी। जाने माने रामानुजन उन दिनों इंटरमीडिएट के कक्षा में पढ़ाई जाने वाली गणित की तीनों संख्याओं जैसे कि अंकगणित, त्रिकोणमिति और हार्मोनिक प्रोग्रेशंस का अभ्यास समाप्त कर ली। फिर उनके हाथ लगी एन लोनी की लिखी त्रिकोणमिति का किताब और मात्र 13 वर्ष में ही उन्होंने इस पुस्तक पर महारथी हासिल कर ली और खुद कुछ नए प्रमेय भी खोज निकाली। जब वो 15 साल के हो गए तब अपने मित्र के जरिए उन्होंने स्थानीय कॉलेज की पुस्तकालय से उच्च गणित की किताब जैसे कि सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर मैथमेटिक्स उनके हाथ लगी। सन 1903 में रामानुजन ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्हें एफए परीक्षा में पास होना था और मद्रास की यूनिवर्सिटी में उन्हें दाखिला भी लेनी थी, लेकिन एफए की परीक्षा में वो पास नहीं हो पाए। सन 1906 में एफए परीक्षा में असफल रहने के बाद रामानुजन मद्रास चले आए और पछियापा कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया, पर वो वहां भी असफल रहे। सन 1909 में रामानुजन की मां ने उनके लिए भोली भाली गांव की 9 साल की लड़की अपने बेटे के लिए चुना और उनका विवाह कर दिया। गरीबी और संघर्ष का सामना करते हुए रामानुजन को बचाते हुए प्रोफेसर शेषु अय्यर निकल पड़े उनकी मदद करने के लिए और एक सिफारिश पत्र लिखकर मैड्रास पोर्ट ट्रस्ट मैनेजर, जो कि भारतीय गणित सोसाइटी के एक सदस्य भी थे, उनके पास रामानुजन के साथ एक पत्र भी भेजा। वैसे तुम काफी परेशान नजर आ रहे हो, तो मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? सर, मेरा नाम श्रीनिवास रामानुजन है। मेरे भतीजे ने मुझे बताया था कि तुम फेल होकर
कॉलेज छोड़ चुके हो। जी हाँ सर। सर ये कुंभकोणम कॉलेज के प्रोफेसर शेषु अय्यर जी ने भेजा है। शेषु यार बता रहा था कि तुम अपने साथ शायद कुछ नोटबुक लेकर आए हो, लाए हो क्या? जी हाँ सर, ये रहा। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम आपके गणित से काफी प्रभावित हुए। वैसे रहते कहाँ हो तुम? सर ये बोल्डिंग हाउस पिल्लई स्ट्रीट मद्रास में सर। मद्रास क्यों? सर दरअसल कुंभकोणम में मेरे लिए शांति नहीं थी। यहाँ कम से कम मैं अपना गणित का काम शांतिपूर्वक कर सकता हूँ। अच्छा, तो तुम हमसे क्या उम्मीद रखते हो आखिर? यही कि सर अगर मेरे खाने पीने का बंदोबस्त हो जाए तो मैं शांति से गणित का काम कर सकता हूँ। और रही बात ये जीविका की, तो उसका बंदोबस्त हो जाए तो अच्छा होता। चाहते हो कि तुम्हें यहाँ कोई काम मिल जाए? जी हाँ सर, इसी आशा में आपके पास आया था। ठीक है, तुम यहाँ शायद क्लर्क का काम कर सकते हो। शुक्रिया सर, आपका अशेष अशेष धन्यवाद। उसके बाद रामानुजन को प्रतिवर्ष 25 रुपया का वेतन मिला और 1911 का वर्ष उनके लिए सुखद रहा। और इसी वर्ष जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में उनका प्रथम शोध लेख प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण। रामानुजन अपने साथी रामास्वामी अय्यर के साथ बहुत दिनों बाद मुलाकात होती है और उनके आगे के सफर आइए देखते हैं। कौन है? आता हूँ। अरे रामास्वामी, तुम इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? अरे ऐसे ही आ गया, बहुत अच्छा लगा तुम्हें मिलकर। अरे मुझे भी। क्या बात है, तुम्हारे बारे में तो बहुत कुछ सुन रहा हूँ। ये सब सुन के ही तो तुम्हारे पास आया। सच में? तू कह रहा है कि तुम एक अद्भुत प्रतिभा हो। प्रतिभा? अरे क्या मजाक कर रहे हो यार, कैसी प्रतिभा? मेरी इस कोहनी को तो देखो, इससे पता चलेगा कि मैं कैसी प्रतिभा हूँ। वैसे इतनी रूखी और मैली कैसी है? देखो, मैं गणित स्लेट पर करता हूँ और उसे मिटाने के लिए कपड़ा लाने में ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए मैं अपनी कोहनी का इस्तेमाल करता हूँ और यही स्लेट मुझे प्रतिभा कहलाता है। वैसे तुम गणित स्लेट में क्यों करते हो, कागज में क्यों नहीं? कागज? अरे ना 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 ना, जिसके खाने के लाले पड़े हो वो कागज लाने के पैसे कहाँ से लाएगा? अरे महीने के मुझे 4 रिम कागज चाहिए और वो बहुत महंगे हैं, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? तो तुम्हारा दिन गुजारा कैसे चलता है? मेरा दिन गुजारा तो मैं अपनी नौकरी के पैसों से चलाता हूँ। आगे है दो प्रतिभाओं की जुगलबंदी के मिलन की कहानी। एक है रामानुजन और दूसरा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जी.एच. हार्डी। जी.एच. हार्डी गणित के प्रमाण के कायल थे और रामानुजन के लिए प्रमाण के लिए कोई अहमियत नहीं थी और रामानुजन के लिए कोई प्रमेय में कोई अर्थ नहीं था जब तक उसमें ईश्वरीय विचार ना हो। ये समय प्राचीन पूर्वी सभ्यता की प्रतीक भारत और उपनिवेशवादी पश्चिमी इंग्लैंड के लिए 19वीं सदी के अंत से 20वीं सदी के शुरुआत काल है। रामानुजन 1910 में छपी जी.एच. हार्डी की किताब ऑर्डर ऑफ इन्फिनिटी पढ़ चुके थे। सन 1913 में रामानुजन ने जी.एच. हार्डी को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में क्या लिखा था, चलिए सुनते हैं। मेरा परिचय यह है कि मैं मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क के हिसाब से काम करता हूँ और प्रतिवर्ष 25 पाउंड का सैलरी पाता हूँ। मेरी आयु भी 23 वर्ष है। मैं विश्वविद्यालय में कोई शिक्षा नहीं लिया हूँ, स्कूल का साधारण पाठ्यक्रम में ही पढ़ा हूँ। मैं गणित में बहुत समय लगाता हूँ और जो परिणाम मुझे हासिल हुए हैं वो यहाँ के स्थानीय गणितज्ञ ज्ञान के हिसाब से अनोखा है और मैं इस पत्र के साथ मेरे कुछ प्रमेय दिया हूँ। उस प्रमेय आपको अच्छा लगे और आपकी नज़र में इस प्रमेय का महत्व हो तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको प्रकाशित करा ले और प्रमेय पढ़कर
जो सहमति देंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। हार्डी को रामानुजन के प्रमाण बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने अपने साथी जॉन अडैम्सन लिटिलहुड को अपने कमरे में बुलाया। जॉन अडैम्सन लिटिलहुड को भी यह प्रमेय बहुत अच्छा लगा और उन्हें यह भी महसूस हुआ कि इस गणित में कैसे कैसे हीरे मोती छिपे हुए हैं। तो जीएच हार्डी ने 1913 फरवरी 8 को रामानुजन को पत्र का उत्तर दिया और अपनी मंतव्य दी। रामानुजन हार्डी के पत्र पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनका जवाब भी भेज दिया और उस पत्र में उन्होंने अपनी आवश्यकता प्रकाश किया और ये पत्र पढ़कर जीएच हार्डी अपने साथी एरिक हेरोल्ड को रामानुजन से मिलने भेजा। यहाँ रामानुजन के जीवन का एक नया सुप्रभात हुआ, क्योंकि एरिक हेरोल्ड ने रामानुजन को जीएच हार्डी की तरफ से कैम्ब्रिज को आने का प्रस्ताव दिया। तो रामानुजन ने बताया कि वो रूढ़िवादी ब्राह्मण हैं और उनके माता पिता इसके विरोध है कि वो समुद्र पार की विदेश धरती पर जाए, और ये बताएं कि अगर उनकी माँ उन्हें जाने की आज्ञा दे तो वो निश्चिंत होके कैम्ब्रिज जाएंगे। 17 मार्च 1914 को रामानुजन ने एसएस नेवासा जहाज पर कैम्ब्रिज के लिए सवार हो गए। 9,650 किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद 12 अप्रैल 1914 को वह जाकर कैम्ब्रिज पहुंचे। प्रोफेसर E.H. नेविले उनका इंतज़ार कर रहे थे और उसके बाद वह रामानुजन को G.H. हार्डी के साथ मिलाने ले गए। लंदन की कड़ी ठंडी एक सुबह सर्दी में कांपते हुए रामानुजन हार्डी के कमरे में दाखिल हुए। रामानुजन ने जब कोट उतारा तब कुछ अरहर दाल के दाने गिर पड़े। हाय, हाउ आर यू रामानुजन? यस, आई एम फाइन। अरे ये कुछ गिर पड़ा, ये क्या है? कुछ नहीं, ये सिर्फ दाल के दाने हैं। दाल के दाने किस लिए? बताता हूँ। अच्छा बताओ। तो हार्डी, ये दाल के दाने कुछ अभाज्य संख्या के बारे में बताते हैं। ओह रियली? तो कैसे? इस दाल में से 3 दानों को कितने प्रकार में विभाजित किया जा सकता है? हमें जरूरत ये है कि हम देखें कि किसी भी संख्या को योग के रूप में कितने प्रकार में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप ये खुद भी करके देख सकते हैं। इस दाल को हम इन्हीं तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। पहला, 3 itself, यानी कि 3 स्वयं, 2 जमा 1 या फिर 1 जमा 1। ओके, तो 3 को 3 प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही। वाओ, इट्स ऑसम, इट्स ग्रेट। दाल के दाने से विभाजन का सिद्धांत उपजा और विभाजन के क्षेत्र में रामानुजन की इसी योगदान को पूर्ण माना जाता है। इंग्लैंड की जलवायु रामानुजन के लिए अनुकूल नहीं था। सन 1917 में वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनकी पेट में अल्सर जैसी समस्या आ गई। लंदन में उनका इलाज चल रहा था। एक दिन उनके एक मित्र हार्डी उन्हें मिलने आते हैं। अब जानते हैं कि हार्डी रामानुजन नंबर का आविष्कार कैसे हुआ। हॉस्पिटल का दृश्य। रामानुजन लेटे हैं बेड पर और हार्डी आए हैं मिलने। अरे तुम कैसे हो दोस्त रामानुजन? अरे हार्डी, तुम? वैसे मेरी तबीयत तो कुछ खास नहीं है, लेकिन तुम आए, यही बड़ी बात है मेरे लिए। रामानुजन, मैं जिस टैक्सी से आया था ना, उसका नंबर 1729 था। वो बहुत ही अटपटा और अनलकी नंबर था। अनलकी? ऐसा क्यों? अरे ये संख्या तो 13 से विभाजित है और ये 3 विषम प्राकृतिक ऋण संख्या यानी 3 ऑड प्राइम नंबर्स 7, 13 और 19 का गुणनफल है। अरे इस संख्या में तो 13 भी है और इसे तुम अनलकी बोलते हो। अरे छोड़ो, तुम क्या, ये सारा यूरोप ही 13 को बड़ा अनलकी समझता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अरे हार्डी देखो, दरअसल ये 13 बड़ा ही अद्भुत संख्या है। वो कैसे? अच्छा, ये 1729 4 अंकों की संख्या है और 1 + 7 + 2 + 9 19 है। अरे देखो, ये 1729 19 से विभाज्य हो सकता है
और 19 सबसे छोटी संख्या जैसे कि 2 घन मूल संख्याओं का मूल हो 2 प्रकार में लिखा जा सकता है। जरा बताओ। अच्छा बोलो, 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब कितना हुआ? 1729। बहुत अच्छे। तो यही है when a single number can be represented as the sum of cubes of 2 different sets of numbers। अरे वाह। तो ऐसे ही हार्डी रामानुजन नंबर एक टैक्सी के नंबर प्लेट से आविष्कार हुआ और 1729 हार्डी रामानुजन नंबर के रूप से पूरे विश्व में जाना गया। 1918 में रॉयल सोसाइटी लंदन के प्रांगण एक कार्यक्रम आयोजन हुआ। उसमें रामानुजन के नाम को रॉयल सोसाइटी लंदन के निर्वाचित सदस्य यानी फेलो के तौर पर घोषित किया गया। रामानुजन को एक और सम्मान से भी सम्मानित किया गया। 10 अक्टूबर 1918 में उन्हें कैम्ब्रिज के एक सदस्य के रूप में भी चुना गया और उन्हें 250 पाउंड की छात्रवृत्ति 6 वर्ष के लिए मिला। इसके साथ वो गणित के स्रोत और सृजन में लग गए। उन्होंने कई नए समीकरण ढूंढा जैसे कि इन्फिनिटी सीरीज, पाई और एफआई इसकी उदाहरण है। 27 फरवरी 1919 में उनकी तबीयत की खराबी के कारण वे लंदन से भारत रवाना हुए और 13 मार्च 1919 में वे जब बॉम्बे पहुंचे तब वहां से वे मद्रास की ओर चल पड़े। मद्रास में उनकी तबीयत और भी बिगड़ती गई। उनके ठीक होने की आशा में कावेरी नदी के स्थित जेतपुर उनको लाया गया, पर अफसोस उनका अंत आ गया था। 24 अप्रैल 1920 को सुबह सुबह वो अचेत हो पड़े और दोपहर होते होते 32 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। भारत का यह अद्भुत गणितज्ञ अपनी कीर्ति को छोड़कर इस संसार से चले गए, लेकिन गणित के क्षेत्र में उन्होंने जो किया वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण और ज्ञान की विरासत है। तो भारतीय सरकार ने 22 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस की तौर पर घोषणा कर दिया। इसीलिए हम सब की ओर से आप सबको राष्ट्रीय गणित दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, dear children, for your marvelous performance. You made everyone aware of Srinivasa Ramanujan's struggles and his accomplishments. May I now take the opportunity of inviting one of our most learned scholars, Dr. Anjusri Pradhan, HOD of Mathematics, to speak a few lines on this auspicious occasion. An equation means nothing to me unless it expresses a thought of God. Warm greetings to everybody. National Mathematics Day is commemorated on 22nd December since 2012. This is the day that resides on every mathematics lover's heart and soul. The former Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, declared this day as National Mathematics Day when he visited the Madras University to pay tribute one of the greatest minds India has ever seen, who is none other than Srinivasa Iyengar Ramanujan. This day marks the birth anniversary of self-taught Indian mathematician Srinivasa Ramanujan. During his short life, Ramanujan independently compiled nearly 3,900 results, mostly identities and equations. Many were completely novel. His original and highly unconventional results such as Ramanujan prime, Ramanujan theta function, partition functions, Mach theta functions opened entire new areas of work and inspired a vast amount of further research. Under the guidance of Professor G.H. Hardy, Ramanujan expanded the horizons of mathematics with his unique and novel proofs. We all know about Ramanujan's number, that is 1729, which can be expressed as sum of cubes of
two pairs of integers. Ramanujan used to say, I am not a conventional mathematician. I am a lover of mathematics. His unique style of learning puts emphasis on allowing students to construct their own knowledge, which honors their learning ability to help them become independent thinkers. We get a lesson from his simple life that hard work and perseverance can bring great changes. I hope this presentation invigorates our young audience with a mathematical passion, which seems some of us can make great contributions to this field. At last, I would like to say, mathematics is not only a subject, it is an emotion we should be proud of. Thank you, everybody. Thank you, ma'am, for your words of wisdom. Since we have come to the end of today's observation, it's my proud privilege to propose the vote of thanks. First of all, I would like to extend my sincere gratitude and heartfelt thanks to our revered Principal Sir, Dr. Kesav Chandra Satpathy, for being the guiding star all the way. I also like to express my gratitude to our esteemed coordinator, ma'am, Indira Bhattacharya, for always being a great inspiration for all of us. I also like to thank all the supervisors for extending their helping hands. I am also equally thankful towards all the teachers, beloved students who have joined us virtually to observe this program. At last but not the least, I would like to thank each and everyone for participating in this program and making this program a successful one. Thank you once again.